Okay. Good afternoon to all of you. Today's sessions will be about market updates. And we're going to discuss about market at 58,000 level, what you're going to do, whether you want to buy it, whether you want to hold it, or whether you're going to sell it. So आज का sessions में both English and Hindi में लूँगा because there are a couple of audience I have seen known faces. They've already told me earlier कि आप language को थोड़ा सा mix करके लेना. And a couple of technical things मैं कोशिश करूँगा ना बोलने का, but a couple of you who have attended my earlier sessions on couple of valuation parameters might be knowing, but मैं कोशिश करूँगा उसको ना बोलने का, जितना हो सके simplified way में मैं I will try to speak, and I hope I'm audible to all of you. And the way I will be going is that कि बीच में I will not interrupt, I will not ask any, I will not allow any questions to come on. So if you have any questions, you can drop in a chat box. I will going to see at later end or probably at the end of the sessions if time permits. And all of you, I have seen in the people who have joined in have my WhatsApp number. They can drop me a private message. I can answer that there itself, whatever query you might be having. We have roughly around 90 to 100 slides today. And आज का सेशंस में ज़्यादा कम बोलूँगा because this is not a training sessions. It is more of what exactly is happening in the market और आपको आज के टाइम में क्या करना चाहिए. So I will let more data speak than myself speak. So I have a team which have built up all the data and have validated those data. So let's go ahead. What exactly happened? So आज 11 सितंबर को जैसे हम बैठे हुए मार्केट 58,000 पे है. And a lot of people, a lot of investors are worried ki is it an all-time high or till that high, and what should we do? Like I know that a lot of you, I have taken sessions earlier also, I've said that Indian stock market Sensex की अगर बात करूं तो 2022 में ये 60,000 क्रॉस करेगा. I've already told 8-9 months back, if you are following me every month webinar of mine. And by 2030, Indian Sensex you will find reaching 150,000, or you will find that Nifty will reach Sensex by 2030, and I have given solid evidence for that with data pack. 2022 में इंडियन स्टॉक मार्केट 60,000 जाएगा, बट आज हम सितंबर में बैठे हुए हैं, वी आर नियर अबाउट रीचिंग 60,000 लेवल, 58,000 लेवल. सो ये पिछले 1-2 महीने में क्या हुआ है कि मार्केट अचानक इतना बढ़ गया, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. एंड क्या इस लेवल पे हमें रहना चाहिए, व्हाट वी आर गोइंग टू डू एट दिस लेवल, वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट. बट उससे पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आज, जो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो इस बात को आप बारीकी से, इस बात को आप गौर करना, इस बात को आप इंग्रेंड करना अपने माइंड में. Before saying that, this is one company which all of you might be knowing. You know, I don't have to say anything about this. Goldman Sachs, world's का one of the biggest equity advisories and research firms है. And Goldman Sachs में क्या बताए थे? Let's see what they have predicted. I have taken out the media report from them. उन्होंने Goldman Sachs ये April 2020, 16th April, if you see the data carefully, 16th April 2020 में बताए थे कि by June 2021 निफ्टी 9,600 पे पहुंच जाएगा. यूबीएस ने बताए थे 10,000 जाएगा. सो 10,000 रेंज में निफ्टी जाएगा बाय जून जुलाई में. Goldman Sachs जैसे कंपनी, okay, and they have gone completely wrong. Like in June, we are near about 14,000 level. Then they have changed their prediction, and they normally they say that Nifty year end 2020 year end तक 14,100 पे जाएगा. And we all know what exactly Nifty today. So they have gone absolutely wrong. And when we talk about Goldman Sachs, there are like 100 years plus companies, 100 years plus research firm, very solid data and everything. So मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कंपनी जो है जो 100 साल पुराना है, they can also go wrong with their prediction. So equity market में predict करना is very difficult. Those who claim that market यहाँ से यहाँ चला जाएगा, I will say that I will not go by that method. But what we can do that we can actually estimate कि market का movements यहाँ से कहाँ होगा. Probably shorter range में आपको बोलना थोड़ा दिक्कत है, but if you take a longer range like 5 years, 10 years down the line, you can see that where will the market will go from here. So what we are going to do that we are not going to predict where the market will go, but we'll try to estimate with couple of data which I will show to you. Okay.
वी ऑल नो दिस थिंग, आई एम मूविंग अहेड नाउ। ये डेटा, ये जो ग्राफ, ये जो पिक्चर अभी आपके सामने आप देख रहे हो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा ये पिक्चर को याद रखना। आप बहुत पैसा कमाओगे और आपको लॉसेस मिनिमाइज हो जाएगा। नाउ ये पिक्चर में है क्या? नाउ the picture says that there is one horse which is been tied up to a vehicle and exactly स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर मैं हॉर्स को सेंसेक्स लूँ, हॉर्स को अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन लूँ, स्टॉक मार्केट लूँ, तो ये जो व्हीकल है ये जीडीपी है, राइट? नाउ व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, व्हाट इज सेंसेक्स, ये आज के डिस्कशन का स्कोप नहीं है। मेरे इक्विटी के ऊपर मैं कई सारा सेशंस लेता हूँ, उसमें आप अटेंड करना, आपको और ज्यादा क्लैरिटी होंगे। So I presume that you have a basic idea about what is GDP, what is Sensex and market capitalization. So मैं हॉर्स को लेता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन और व्हीकल को लेता हूँ जीडीपी। सो आप बारीकी से गौर करना, अगर ये व्हीकल वहां पे रुक जाता है तो हॉर्स ज्यादा आगे नहीं जा सकता बिकॉज देयर इज समथिंग अटैच टू हिज नेक। साइमल्टेनियसली हॉर्स काफी पीछे भी नहीं जा सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि जीडीपी, इंडिया का जीडीपी जहां पे रहेगा, इंडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी उसी के आसपास रहेगा। 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट विल नॉट गो लाइक इंडियन जीडीपी। अगर मान लो 100 रुपए पे इंडियन जीडीपी, मान लेता हूँ 100 रुपए पे, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 या 50 नहीं जा सकता। इट विल होवर राउंड अराउंड 95 to 105 के रेंज में रहेगा, जस्ट एज द सेम एज हॉर्स एंड द व्हीकल देयर। सो इस पिक्चर को आप दिमाग के अंदर डेपिक्ट कर लेना। आपको जो भी टेक्निकल चीजें वो प्रोबेबली डे टू डे लाइफ में उतना यूज नहीं करते हो, बट ये पिक्चर आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा व्हाट आई गोइंग टू से इन अर्लियर स्लाइड्स। नाउ मार्केट कैप टू जीडीपी जो है ये वॉरेन बफेट के इंडिकेटर है। So if you couple of you might be knowing who is Warren Buffett. So Warren Buffett only one of the major parameters to investment करते हैं, which is called a market cap to GDP ratio. अगर मैं ये डेटा को देखूं, 2008 में सेंसेक्स 21,000 था एंड मार्च में 51,000 सेंसेक्स था, दिस मार्च में। राइट नाउ वी आर 58,000 लेवल, लिटिल बिट ओल्डर डेटा है ये। जीडीपी नंबर आज के टाइम में इंडिया में है 194 लाख करोड़। अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करो तो 2.87 ट्रिलियन डॉलर है आज के टाइम पे। एंड मार्केट कैप राइट नाउ ये मार्च का है 197, आज के टाइम में है 225 लाख करोड़ के आसपास है। सो अगर मैं मार्च में देखूं, इंडिया का मार्केट कैप टू जीडीपी था 101%। अगर ये दोनों को आप देखोगे तो 101% था। इन जनवरी, आपको याद होगा, इन जनवरी 2008 में जब उसके बिल्कुल बाद वी हैव इन अक्टूबर सब प्राइम क्राइसिस हुए थे, उस टाइम मार्केट कैप टू जीडीपी 148 था। 21,000 से गिर के मार्केट 28,000 चला गया था। एंड देन वी ऑल्सो सो ऑल दिस नंबर्स, अक्टूबर में जैसे मार्केट 21,000 से 8,000 चला गया था, वी हैव दिस नंबर ऑल्सो एंड दैट्स अ गुड टाइम टू अपॉर्चुनिटी टाइम टू इन्वेस्ट ऑल्सो। एंड लास्ट ईयर जब कोविड हुआ था, हम लोग को सबको पता है कोविड हुआ था लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में, 42,000 मार्केट था जनवरी फरवरी में। 2020 जनवरी फरवरी में अगर आपको याद होगा सेंसेक्स 42,000 था एंड देन वी हैव दिस कोविड सिचुएशन कम्स अप एंड देन मार्केट वहां से 42,000 से गिर के हो गया था 25,000 के आसपास, 26। See the market cap to GDP rate that time, it was 51%. That was so attractive moment to invest. I have given a very aggressive call to invest during that time. Very few investors listened to me, and those who have listened, they have made money. A lot of people have pulled out their money this thing, but that is an absolutely wrong time. आज में अगर देखूं, मार्च में अगर नंबर को देखूं, मार्केट जब 51,000 सेंसेक्स पे था तो मार्केट कैप टू जीडीपी 101 था। बट आज सितंबर में अगर मैं देखूं, मार्केट कैप टू जीडीपी इंडिया का है 111%। सो अगर आप मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो को देखोगे, वी आर नियर अबाउट 10 to 12% हायर as per the market goes. Okay, so we are trading a little bit higher of 10 to 12%. So there is a correction probability of 10 to 12% in the market if we go by the market cap to GDP number. We're going to see more data to validate what I'm saying. Now this is important data. नरेंद्र मोदी जी ने बताए थे कि 2024 में इंडिया का जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। आज के टाइम में जब हम बैठे हुए, इंडिया का जीडीपी 2.87 से 2.9 ट्रिलियन डॉलर है एंड by 2024 he said that Indian GDP will be 5 trillion dollar. So probably 24 में नहीं होगा because of COVID situation has slowed down a little bit last year.
बट 26 में जरूर 5 या 6 ट्रिलियन डॉलर इंडिया का हो जाएगा. सो व्हेन वी से क्यों होगा मैं आपको आगे बताऊंगा. सो व्हेन वी से इंडियन जीडीपी जो है 2.9 ट्रिलियन डॉलर अप्रोक्सीमेटली आज के टाइम पे है, ये 5 या 6 5.5 ट्रिलियन डॉलर होगा. दैट मीन्स इट विल डबल फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट 5 years. मार्केट कैप जो बैठे हुए, मार्केट कैप जो आज के टाइम में है वो भी डबल होगा. एंड इफ द मार्केट कैप डबल, मार्केट कैप इज नथिंग बट सेंसेक्स में जितना कंपनी है उनका अगर टोटल एसेट अब लो, मार्केट कैपिटलाइजेशन लो, तो उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन. सो वो भी डबल होगा यहाँ से. सो 2026 में अगर आपको लगता है कि इंडिया का मार्केट, इंडिया का जीडीपी ग्रो करेगा, इफ यू बिलीव दैट इंडियन जीडीपी विल ग्रो, सो इंडियन मार्केट कैप विल आल्सो ग्रो. सो आज 58,000, probably 10% higher index hai. So I presume that 52 and 53 is the exact number that we should be. 2026 में आपको ये 110 के आसपास दिख सकता है एज वेरी वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट में आपको बता रहा हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट कैप टू जीडीपी नंबर्स के साथ. नाउ ये पिक्चर्स को आप देखना, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर. लाइक देयर आर couple of people playing football, and you see there is no bar post in the photograph. So if there is no bar post, आप इन्वेस्टमेंट आज के टाइम में करोगे या पैसा प्रॉफिट को बुक करोगे या आगे करोगे, डिपेंड करता है आपका गोल्स क्या है. अगर आपका जैसे ये फुटबॉल में कोई गोल पोस्ट नहीं है, probably you will end up making losing money. You don't know where you want to go. So I will recommend all of you to have a very very clear cut goal of investment. Short term goal क्या है, medium term goal क्या है, and long term goal क्या है. And long time I already told you that 2026 Indian GDP is going to double, and as well as the market cap is also going to double. But in between जो 5 साल है, ये जो 58,000 से 1,10,000 या 1,15,000 का जो जर्नी है, सॉरी, ये लीनियर नहीं होगा. लीनियर मीन्स इट विल नॉट गो लाइक दिस स्ट्रेट वे. ओके, इट विल हैव अ बम्पी राइड फॉर श्योर. लास्ट 12-15 महीने में 25,000 से लेके 58,000 तक सेंसेक्स हमने देखा है मार्केट से ऊपर गया हुआ है. इट हैज नॉट गॉन डाउन अ लिटिल बिट ऑल्सो. ओके, एंड क्यों गया है मैं आपको आगे बताऊंगा. उसी के कारण मुझे लगता है कि कमिंग आपको 6 महीने या 8 महीने में थोड़ा सा नीचे की तरफ मार्केट दिख सकता है यहाँ से. वो मैं क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा. बट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आपके पास गोल होना वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर आपको शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है कहीं पे, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगले 6-8 साल में आपको पैसा चाहिए, दिस इज अ राइट टाइम दैट यू बुक योर मनी एंड पार्क असाइड, सो दैट आपका नियर टर्म गोल्स आपको मीट कर जाए. बट अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है लाइक 7 years 10 years काइंड ऑफ थिंग, you should stay invested. Probably little bit of juggling about your investment from one sector to another sector. कौन सा sector होगा? Well, I will not recommend any stock name, any fund name, because this is only an information sharing webinar. I am not allowed to speak about stocks, specific stocks from the SEBI point of view. Okay, so I move ahead. Now we'll talk about little bit, see what happening in the globe. Okay, so I'm going to see what happening in the globe and उसका impact इंडिया में क्या है. सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड हमने देखा है कि लास्ट 18 months में दे आर पंपिंग सो मच ऑफ मनी. नाउ ये जो मार्केट वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हुआ है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुआ है, ये क्यों हुआ है? बिकॉज देयर आर सो मच ऑफ मनी पंपिंग बाय द सेंट्रल बैंक अक्रॉस द वर्ल्ड. इट इज नॉट ओनली अबाउट इंडिया. अगर यूरोप के किसी भी बैंक को देखोगे, यूएस का देखोगे, दे आर पंपिंग सो मच ऑफ मनी. कहते हैं कि लास्ट 30 years 40 years में जितना भी पैसा पंप सेंट्रल बैंक ने, फेड ने, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, उन्होंने पंप नहीं किए थे. लास्ट 18 months में अकेले उन्होंने वो पंप किया है. सो द ग्राफ शोज यू दैट दे हैव पंप इन सो मच ऑफ मनी इन द लास्ट 18 months, एंड दैट एग्जैक्टली रिजल्टेड. क्या हुआ है? ये जो इतना पैसा उन्होंने पंप किया है, यूएस ने, आपको पता होगा कि लास्ट 1-1.5 साल से उन्होंने हर हाउस होल्ड के पास उन्होंने पैसा दिया हुआ है. सो दे मेक श्योर दैट यूएस के जो सिटीजन है वो ये कोविड सिचुएशन से फाइनेंशियली इंपैक्ट ना हो. से एक्चुअली एवरी यूएस सिटीजन दे हैव गॉट मनी इन देयर पॉकेट. एंड व्हाट दे हैव मोस्टली डन इज दैट, बिकॉज इस टाइम में ज्यादा लैविशनेस या ज्यादा घूमना फिरना नहीं हुआ है, तो मोस्ट ऑफ दिस मनी हैज गॉन टू द फाइनेंशियल एसेट. जब मैं फाइनेंशियल एसेट की बात करूं तब वो आता है इक्विटीज में. यूएस में यू ऑल नो दैट द बॉन्ड यील्ड्स, जो फिक्स्ड इनकम का यील्ड्स है, काफी लो है. तो उन्होंने इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट किया है ग्लोबली.
Okay, and that is the reason there are a lot of money pumping across the global stock market, and सारे के सारे stock market बढ़ा है. US ने record pumping किया हुआ है last 18 months पे, so the data also shows that. So we move ahead. ये मैंने exactly वही data आपको बताया, liquidity going into financial assets. So most of the thing which has gone to the financial asset. ग्लोबल मार्केट कैप, नाउ ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं मार्केट कैप पे आऊंगा, जीडीपी रेशियो टू मार्केट कैप. अगर आप देखोगे आज के टाइम में ग्लोबल मार्केट कैप टू जीडीपी, ग्लोबल मार्केट कैप टू जीडीपी 137% है. सो अगर आप यूएस में आज के टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यूरोप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, दे आर एबनॉर्मली हाई मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है 137%. सो नॉर्मली कितना होना चाहिए? 100%. आपको मैंने घोड़ा और वो हॉर्स और वो गाड़ी का मैंने आपको एग्जांपल दिया. सो can understand that horse is like stretching a 2-bit right now, which is not sustainable. So 137% GDP ratio to market cap globally है. इंडिया में वो 111% है, 111% है. So which probably is not sustainable for a long period of time. कितना टाइम करेगा, क्यों करेगा, I will going to discuss going in a subsequent slides. Another important data point, अगर आप यूएस का स्टैंडर्ड एंड पुअर इंडेक्स देखोगे, ग्लोबल इंडेक्स देखोगे, मोस्ट ऑफ द यूएस कंपनी दे आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश राइट नाउ. ओके, दे आर सिटिंग ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश. उनका बैलेंस शीट देखोगे, दे आर सिटिंग ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश. एंड इन्वेस्टर्स ऑल्सो, bearing Indian investor as well as the foreign investor also, they are also having a huge saving. I don't know how many of you have made a huge amount of money in last 12 to 18 months, but data, if you see the data that says that across the globe people have made so much of money in the last 18 months because central bank pump in a lot of money and those money come into the stock market. So if you have invested in stock market in last 12 to 18 months, आपने बहुत पैसा कमाया होगा, and I'm for sure. नाउ ये डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यहां से मार्केट कहां जाएगा, ये डेटा पॉइंट आपको कहता है. देखो, दो ही फैक्टर है यहां से मार्केट ड्राइव करेगा. द वन इज फंडामेंटली. अगर मैं देखूं फंडामेंटली कंपनीज का प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया. ग्लोबली बात कर रहा हूं अभी इस टाइम पे. कंपनीज आर सिटिंग ऑन कैश. मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर यूएस में देखोगे, दे आर हैविंग अ फैंटास्टिक टॉप लाइन सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ ऑल्सो. सो दे हैव नो प्रॉब्लम फंडामेंटली. बट द प्रॉब्लम क्या है कि इतना पैसा सेंट्रल बैंक ने पंप किया हुआ है, दिस विल एक्चुअली राइज इन इन्फ्लेशन इन द मार्केट. जब इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ता है यूएस में, जब इन्फ्लेशन मार्केट में बढ़ता है तो यूएस क्या करता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है. अगर इंटरेस्ट रेट यूएस में एज ऑल टाइम लो, आई विल शो यू द डेटा इज 0.25 और 0.5% है. अगर इंटरेस्ट रेट यहां से इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन गोइंग हाई, इन्फ्लेशन को एक हद से ज्यादा बनने नहीं दे सकता कोई भी डेवलप इकोनॉमी. तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, आपका स्टॉक मार्केट नीचे आ जाता है, वो क्रैश करता है. देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन दैट. ये डेटा पॉइंट अगर आप देखोगे, फर्स्ट टाइम इन यूएस इन सो मेनी इयर्स, अगर आप ये सीपीआई देखोगे, देखो इन रिसेंटली द सीपीआई हैज इंक्रीज टू मच, whereas the yield, this is the interest rate, has remained low. So this gap is widening right now, and this is the number one worry across the globe every investor should have. So यहाँ से अगर Fed इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ाता है, जस्ट टू पुल डाउन दिस ग्राफ अगेन नीचे की तरह, यू आर गोइंग टू सी अ ह्यूज रिपरकशन इन इंडिया ऑल्सो. इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा? एफआईआईज जो इंडिया में है वो यहाँ से पैसा बाहर निकल जाएंगे, एंड यू विल सी गोइंग टू सी अ मार्केट क्रैशिंग डाउन फ्रॉम हियर. बट क्या यूएस यहाँ से पैसा ऊपर ले, मतलब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा? लेट्स सी कितना फास्ट जाएगा. सेकेंड द सेम डेटा पॉइंट. हाँ, सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं उस पॉइंट को वैलिडेट कर रहा हूँ. यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट जो इश्यूज है, विच हैज मोर और लेस दे हैव एड्रेस दैट, दे हैव क्रिएटेड मोर जॉब्स. एंड यूएस का जो अभी इंटेंशन ये है कि दे वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर जॉब्स. दैट्स नंबर वन. एंड उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन जो प्राइस यूएस में इंक्रीज हुआ है, दैट द रीजन ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ पंपिंग इन मनी, बस बिकॉज ऑफ सप्लाई इशू. यूएस में अभी आपको पता होगा, रिसेंटली दे हैव अ ह्यूज कोविड केसेस गोइंग ऑन. यू नो, इंडिया में जो हम लोगों ने लास्ट ईयर मई जून में हुआ था, हॉस्पिटलाइजेशन, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल, यूएस में अभी वो चीज होने स्टार्ट हुआ है. सो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द रिन्यूड कोविड फियर, डेल्टा वेरिएंट फियर कम अप, तो यूएस में आज के टाइम में क्या है कि सप्लाई इश्यूज बहुत हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ द सप्लाई इशू इन्फ्लेशन बढ़ा है. सो फेड इज
प्रिज्यूमिंग ये कोविड का जो थर्ड वेव अभी यूएस में चल रहा है, ये 2-3-4 महीने में सब्सिडाइज हो जाएगा एंड देन द सप्लाई साइड विल अगेन कम बैक नॉर्मलसी एंड तब ऑटोमेटिकली द इन्फ्लेशन जो अभी स्टीव का ऊपर जा रहा है वो नीचे आ जाएगा. So probably next 3 to 4 months they are not going to do anything else with the interest rate. अगर वो 3-4-5-6 महीने में मैक्स वो नीचे नहीं आता है, सप्लाई साइड इंक्रीज नहीं होता है, so probably then they are going to take a decision on rising the US interest rate upside. इसमें आपको पता चल जाएगा कि what Fed is going to do. There is a every 2 months there is a review meeting happen between FOMC US में होता है and they actually decide कि interest rate क्या जाएगा. So आपको कोई डेटा पॉइंट नहीं देखना है, कोई मीडिया में कुछ कह रहा है, टेलीविजन में कुछ नहीं देखना है. व्हाट यू नीड टू डू दैट, आपको एफओएमसी का रिव्यू मीट देखना है. एवरी 2 मंथ यूएस में होता है, 2 महीने में एक बार वो 1 घंटे का रिव्यू मीट का आपका आप समरी आप देख लो, आपको पता चल जाएगा कि यूएस फेड इज व्हाट इज गोइंग टू डू. Just the only factor which is going to pull down the market right now is interest rate going high and obviously COVID third wave creating havoc. वो हमें लगता नहीं है कि उतना havoc create होगा because इंडिया में we are doing a rapid vaccination and US में भी they will somehow manage this situation. So that is the only one point that we have. Fundamentally we all are strong. आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा fundamentally हम कितना strong है यहाँ से. कोविड केस मैंने ये आपको बता दिया ये वाला पॉइंट पे. एंड projection of global economic growth, well we seen the data like 2020 में सारे GDP growth नीचे था and we all see how this will go ahead. 2023 में अगर आप देखोगे US -3.5 से 1.3 होगा and oil importing emerging market -2.6 से 4 होगा and China will also more or less stagnant. So the projection of GDP growth across the world in 2023 onwards is very positive and this is an IMF data and is going to rise from here. So that's normal data. So let's come back to the Indian economy. So I presume that global economy आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा. US में inflation अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है, but they are not. The Fed is not concerned because they are more concerned about the COVID situation. So they presume that if the COVID situation normalize third wave, the supply side will increase and the inflation curve जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो नीचे आ जाएगा and they don't need to increase the interest rate. That's one. So net एक चीज मैं आपसे इससे बताऊंगा कि a lot of people are saying that COVID is creating havoc. COVID is creating havoc in US and India also. But मैं on a lighter note आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक COVID है, जब तक COVID का fear है, stock market नीचे नहीं जाएगा. Okay, so the day you think that COVID fear is gone, everything is normal, you're going to see central bank across the globe will tighten the monetization policy. इतना पैसा market में central bank ने दिया है, they are going to pull out that money from the market, and that time they will do it, you will see the stock market will be a fair reasonable amount of correction that you're going to do. So जब तक COVID है, बोलना नहीं चाहिए, जब तक COVID है आप शुक्र करो कि आपका पैसा यहाँ से और ग्रो करेगा. Now come back to the Indian economy. Let's see what happening in Indian economy. अगस्त में क्या हेडलाइन था? वी हैव अ हायरिंग जो है टच प्री पैंडेमिक लेवल पे किए थे. हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू एडमिनिस्टर 100% एडल्ट पॉपुलेशन. इंडियन मार्केट कैप टू जीडीपी मैंने आपको बताया थे 115% चला गया है, 111 बताए थे, 115% अभी इंडियन मार्केट कैप टू जीडीपी है. सो ये 100 पे होना चाहिए, 115 चला गया. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इंडियन मार्केट राइट नाउ 10 से 15% के बीच थोड़ा सा आपको प्राइस ही दिख सकता है यहाँ से. तो 58,000 है, तो नॉर्मली इट शुड बी अराउंड 52-53,000 लेवल. 5-6 हजार पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स की बात करूं, हाईएस्ट सिंस 2008. ओके, एंड इंडिया इमर्ज इज अ सेकंड मोस्ट अट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग हब ग्लोबली. ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ चाइना फैक्टर विच हैज कम अप. वी ऑल नो व्हाट इज हैपेंड इन चाइना बिकॉज ऑफ कोविड origin and everything. Now government has taken a lot of steps also. They have given a lot of PLI schemes also. So अगर आप इंडिया में इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग हब बैठाओगे, so there are a lot of incentive from the government side, and that's why you're going to see a lot of manufacturing hubs are coming up in India, shifting globally from China to India itself. And another interesting data point which I want to say that corporate tax was 25% earlier. It has reduced much lesser right now. कई oppositions or people कहते हैं कि as an individual we used to pay 30% tax, but as a corporate they're paying very less tax. I will say that's a very, very welcome move because when you reduce corporate taxes, what happens that the corporates, the companies, they will not sit on cash.
they are somehow will roll the money in the market. So if they roll the money in the market, they will create a lot of employment opportunities. Okay, so it is good that government has reduced corporate tax so that it will create more employment in the market. Second important point is that आपको अभी इस टाइम न्यूज में पता होगा कि गवर्नमेंट हैज टेकन अ लॉट ऑफ डेट्स. उधार लिया है गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा. गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो काफी बढ़ चुका है इस टाइम. ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ कोविड के कारण जितना भी सब्सिडी गवर्नमेंट को ओवरऑल देना पड़ा, इसलिए गवर्नमेंट ने काफी डेट्स लिया हुआ है. बट इसका एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के पास मॉनिटाइजेशन स्कीम अभी इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 2024 तक. उनके दौरान वो क्या करेंगे, जितना भी पीएसयूज इंडिया में है, दे आर गोइंग टू सी दैट मोस्ट ऑफ द पीएसयू विल गेट डिसइन्वेस्टेड. दे आर गोइंग टू रेज मनी फ्रॉम देयर. गवर्नमेंट का काम बिजनेस चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना. थैंक गॉड आफ्टर सो मेनी years we have find a government. I am not favoring any government right now, but we have find a government who are understanding the concept that government work is to do a governance and not run business. Business should be run by the individuals and the private entities. So LIC are going to see a big corporate public IPOs will come up this year end or next year beginning kind of thing, and a lot of other will also come up, and you will see going to see a lot of activities or a lot of privatization happening that way. So that's the जो गवर्नमेंट का उधार इतना बड़ा है, आपको उसको एड्रेस करने के लिए ये वाला पॉइंट बताया. तो दे आर गोइंग टू हैव planned beforehand how to reduce that udhar till that 2024 time frame. Moving ahead, हेडलाइंस में और क्या है, रूट ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी डीपन्स, फॉरेक्स रिजर्व हाईएस्ट है, एक्सपोर्ट हम लोग का बहुत ज्यादा बढ़ गया है. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट. एक्सपोर्ट इंडिया का बहुत ज्यादा बड़ा है. आपको अगर आगे के ग्राफ में दिखाऊंगा एक्सपोर्ट कितना, एंड गोइंग अहेड एक्सपोर्ट विल ऑलवेज बी हायर इन इंडिया. So you will see a lot of companies who are basically export driven because of China factor. A lot of other countries in the world, they will look forward to India to get the product from India because the world believe that India could be a best alternative to China right now. So export data point बड़ा है, and आगे आपको देखेंगे कि export और बढ़ेगा यहाँ से. Indian GDP grew last this April May June में 20% ग्रू किया है बिकॉज ऑफ द लोअर बेस रेट. बट जो जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट ईयर कम हो गया था, विच इज कम बैक शार्पली, एंड आगे चल के आपको और शार्पर दिखेंगे. इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं होल्ड करूंगा बिकॉज मैं आपको हमेशा एक पॉइंट बता रहा था पहले, घोड़ा और वो गाड़ी के साथ, जीडीपी और मार्केट कैप के साथ. जीडीपी क्यों बढ़ेगा? देखो, तो वेरी लेमैन लैंग्वेज में आपको ये बताना चाहता हूँ, जीडीपी कुछ नहीं है. डोंट गेट इनटू द नंबर्स ऑफ जीडीपी. जीडीपी क्या है कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. सो अगर आपको क्या लगता है इंडिया में 2021 में हम बैठे हुए, यहाँ से नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा. 2030 में अगर कोरोना नहीं होता तो हम 10 साल पीछे चले जाते. तो कोरोना व्हाट हैज डन टू इंडिया इज दैट दे हैड एडवांस इंडिया 10 years. आज के टाइम यू हैव सी अ लॉट ऑफ कंपनीज, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑनलाइन, डिजिटलाइज. तो व्हेन आई टॉक अबाउट डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन, ट्रांजैक्शंस बढ़ गया, इवन इफ द कोर्ट केसेस आर हैपनिंग ऑन ऑनलाइन. सो जब ट्रांजैक्शंस कोई चीज का बढ़ता है, सो जीडीपी नंबर्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. सो दैट इज द रीजन आई एम वेरी स्ट्रांग ओपिनियन दैट इंडियन जीडीपी विल डबल फ्रॉम हियर, एंड ऑब्वियसली व्हेन द जीडीपी ग्रोज डबल, द मार्केट कैप विल आल्सो ग्रो डबल. सो मूविंग अहेड, this is an important data point. Demand is still pre-pandemic level, still low pandemic level. इंडिया में मार्केट 58,000 चला गया है, बट अभी भी जीडीपी, अभी भी डिमांड जो है वो नीचे है. अगर आप देखो एक्सपोर्ट छोड़ के, मैंने आपको पहले ही बताया एक्सपोर्ट हैज एक्सपोनेंशियली राइज, इंपोर्ट हैज आल्सो, बट नॉर्मली आप देखोगे जीडीपी, प्राइवेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट, ऑल दिस नंबर्स, डिमांड जो है वो प्री pandemic से नीचे है, which is going to rise from here as we go ahead more into normalcy. Business redemption scale, more or less business redemption scale pre-pandemic stage पे हम चले गए, normalize हो गए इंडिया में. And GST collections, we are near about normalize, 1 लाख करोड़ से ऊपर हो रहा है every year, every month. टैक्स रेवेन्यू अगर आप देखोगे, इंडिया का टैक्स कलेक्शन ऑल्सो ग्रोन ओवर द इयर्स, ओवर एवरी मंथ ऑन मंथ. अगर अप्रैल जून का नंबर देखोगे, नेट टैक्स रेवेन्यू हैज इंक्रीज शार्पली, fiscal deficit has decreased sharply, so which is a good number that we are having, and it is going to have a steady flow from here. मैं आपको ये क्यों ये डेटा बता रहा हूँ, बिकॉज ये डेटा विल टेल यू दैट despite whatever data you are reading here and there, this shows that we are at a fantastic position. जो प्री कोविड में हम सिचुएशंस थे, कोविड के बाद इंडिया का सिचुएशन इज फैंटास्टिक. अगर आप इंडिया का बैलेंस शीट देखोगे, वी आर इन अ एब्सोल्युटली ग्रेट पोजीशन राइट नाउ. फंडामेंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल्सो डिप हुआ है.
थर्ड वेव, कोविड थर्ड वेव में नॉर्मली हम कंट्रोल्ड में है। अभी भी आज के टाइम में देखोगे अगर 50,000 अप्रोक्सीमेटली इंडिया में आ रहा है तो मैक्सिमम केरला से आ रहा है। एंड कोविड थर्ड वेव मुझे नहीं लगता कि उतना हैवॉक क्रिएट करेगा जो सेकेंड वेव में है, बिकॉज एवरी डे वी आर हैविंग 1 CR प्लस वैक्सीनेशन हैपनिंग अक्रॉस इंडिया। एंड प्रिज्यूमेबली कोविड थर्ड वेव मुझे लगता है कि ऑफलाइन बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये फार्मा एंड अ लिटिल बिट ऑफ गवर्नमेंट पुश है जस्ट टू एंश्योर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल शुड गेट वैक्सीनेटेड आउट ऑफ दैट, but we need to maintain all the precautions that is required, but it will not create as havoc as covid second wave did. अगर मैं कोविड प्री कोविड सिचुएशन देखूं, पीएमआई, जीएसटी एंड बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, आपने देखा होगा फर्स्ट वेव में क्या है, सेकेंड वेव में मई में 2021 में दिस कपल ऑफ था, एंड ऑब्वियसली सेकेंड वेव में यू आर गोइंग टू सी ऑल द डेटा पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम हियर। अगर यहाँ से सारे डेटा पॉइंट, बिजनेस रिडम्पशन इंडेक्स होता है, जीएसटी नंबर्स ऑब्वियसली विल इंक्रीज, पीएमआई बिजनेस इंडेक्स इंक्रीज, सो ये अगर नंबर इंडेक्स यहाँ से इंक्रीज होता है, सो फंडामेंटली वी आर गोइंग टू स्ट्रॉन्ग फ्रॉम हियर। ओके, just a minute. It hanged a little bit. Sorry for the interruption. I think it has get hanged. Just a minute, guys. Okay, sorry. Yeah. So we are there. Yeah. So Australian PM Tony Abbott ने कहा है कि the answer to almost every question about China is India. Although currently not as rich as China, but as a democracy under the rule of law, India is perfectly placed to substitute China in a global supply chain. Moving ahead, success of PLI scheme already mentioned that government has given a lot of incentive for manufacturing here. You're going to see a lot of manufacturers moving from China to India. It has already started happening. Sri City, which a couple of you might be knowing this thing, probably could be a next Gurgaon electronics hub across. So you can Google it out. It is going to have a huge chunk of a lot of companies coming up and making an impact there. Okay, companies have cash rich. I've already mentioned globally also, and Indian also, a lot of companies are sitting on cash. Let's talk about the Indian equity market. We have talked about the global economy. We talk about market cap to GDP. We talk about Indian economy. Let's talk about the Indian equity markets here. Now, if you see, I hope this is clear to all of you. If you see the data here, performance across market cap, अगर आप निफ्टी को देखोगे, लास्ट 1 ईयर में वी हैव अ एक्सेप्शनल रिटर्न, मिड कैप में 70% रिटर्न दिया है, एंड निफ्टी स्मॉल कैप में 84% दिया है। अगर आप सेक्टरल परफॉर्मेंसेस देखोगे, मेटल्स ने लास्ट 1 ईयर में 76% रिटर्न दिया है, अक्रॉस ऑल सेगमेंट हैज परफॉर्म इन लास्ट 1 ईयर। Retail, this is another interesting data point which we have gathered. This is FI data flow, and this black one is the retail data flow. Till the time we are having a huge FI inflow coming up, but from the June onwards, we have seen that FI flow has slightly drained down in India, and we are going to see retail investor participation is higher, and that's what exactly happened. That every time I see that whenever market reaches the top, retail investor comes in and start buying it. Whenever the market at the bottom level, they normally do not buy. If you see the number data out here, June and all these numbers, the FIs, the retail investors are very less participating also. So right now, the retail investors are investing a lot. At 58,000 level, they're investing a lot.
when we talk about 26, 27,000 Sensex level, they are scared that market can go down from here. But at 58,000 level, retail investors are coming in huge number. The FI has slowly dipped down. This is a very interesting data point to understand what there lies in between the sentence. Okay, I will actually summarize at the end what exactly I meant by this statement. दिस इज नंबर वन डेटा लास्ट सितंबर अगस्त 21 सबसे ज्यादा पैसा इंडिया में आया हुआ है. यूएसए इंडिया में 26 यूएस बिलियन डॉलर इन्वेस्ट हुआ है अक्रॉस ऑल ग्लोबल इकोनॉमीज. I'm quickly skipping up. So इंडिया में अगर देखा जाए तो इस टाइम में अगर आप इक्विटी में बताओगे what is going to happen in India, I will going to say that India will be neutral weight, we can say. I am not very positive about aggressively investing in equity right now, and I will park my ending comments at the end, which I'm going to share in next 15-20 minutes. So I'm not spend much time here. Market cap to GDP already mentioned out here. Valuations like P ratio and PB ratio, couple of you might be knowing, couple of you might not be knowing exactly. So when we talk about the P ratio right now, we are having a trailing PE, Nifty PE, price to earning, it's 27, and Nifty PB is 3.6, and we have an inception average of 19.520. So अगर आप P valuations पे देखोगे इस टाइम पे, so we are costly, right? So average 20 है, 19.5 20 है, and we are at 27 right now, so it costly है. But अगर आप forward देखोगे, अगर आप forward P देखोगे, you will be surprised to see that this number is much lesser. So let's go ahead. देखो ये डेटा पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है. वी हैव टेकन दिस फ्रॉम ब्लूमबर्ग, एंड अगर आप ये सिर्फ ये फर्स्ट कॉलम देखना, मार्च 2021 में इंडिया का एनएससी का टॉप 500 कंपनीज का टोटल रिपोर्टेड पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2,10,202 करोड़. ओके, ऑब्वियसली लास्ट ईयर नाउ इसी डेटा को पॉइंट करते हुए 29.2 पी है. व्हाई द पी 27? बिकॉज ये थोड़ा सा डेटा पॉइंट ये जून का है, दैट वाज इन अगस्त, सो इट हैज बीन लिटिल बिट स्लाइटली ऊपर हियर एंड देयर. सो मार्च में अगर मैं देखूं कि 2,10,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है टोटल निफ्टी 500 कंपनीज को. बट ओवर द ईयर लास्ट ईयर कम हुआ है. लास्ट ईयर मार्च में कम था बिकॉज ऑफ कोविड, एंड वी ऑल सीन दिस थिंग. अगर मैं 2021 मार्च डेटा को एनुअलाइज करूं, अगर मैं 2020 डेटा को एनुअलाइज करूं, सो वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 8,40,808 करोड़, एंड वी हैव अ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कि ये जो नंबर को मैं एनुअलाइज कर रहा हूं ये सरपास कर जाएगा. सो अगर मैं इसको सरपास नंबर को देखता हूं, मार्च 2021 का जो नंबर है, इनको मैं अगर फॉरवर्ड करके देखता हूं, सो मेरा पी रेशियो कम हो जाता है. आपको मैंने लास्ट ट्रेनिंग सेशंस में बताए थे, जो मेरे ट्रेनिंग से अटेंड किए थे, अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ता है, अगर मेरे रेवेन्यू बढ़ता है, तो मेरा पी रेशियो कम हो जाता है, राइट? सो द पी रेशियो विच माइट बी सीइंग 29 और 30 राइट नाउ, गोइंग अहेड अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो मेरा पी रेशियो कम हो जाएगा. So this is the data point. I've taken a collated figure of 500 Nifty NSE companies. So that's exactly what it says here. So अगर आप forward P देखोगे यहाँ से, and presumably all of you might agree with me that मैंने आपको पीछे का डेटा बताए थे कि कोविड फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव में कैसे कैसे इंप्रूव हो रहा है इंडियन बिजनेस सिनेरियो. सो अगर बिजनेस सिनेरियो इंप्रूव हो रहा है, सो प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू विल आल्सो गोइंग टू इंक्रीज. सो अगर प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो पी रेशियो कम हो जाएगा. सो आज के टाइम में जो थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेच दिख रहा है आपको, वो फॉरवर्ड में जाके वो रिड्यूस दिखेगा आपको बिकॉज ऑफ प्राइस, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर. देखो, दिस इज अनदर डेटा पॉइंट. अगर मैं फॉरवर्ड देखूं, आपको लास्ट टाइम ट्रेनिंग सेशन में आप में से कोई मेरे ट्रेनिंग सेशन अटेंड किए थे, मैं दिख पा रहा है, आपको पता होगा कि मैंने फॉरवर्ड ईपीएस की बात में किया था. मैंने निफ्टी का फॉरवर्ड पी और फॉरवर्ड ईपीएस वी हैव गैदर्ड, एंड वी हैव सीन दैट 2023 में, अब देखो निफ्टी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज अर्निंग पर शेयर. 2020 में 472 था, ये फॉरवर्ड अर्निंग है 865. सो अगर ईपीएस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पीई आपको कम होगा यहाँ से. सो आज अगर आपका पी ज्यादा दिखता है 27 अप्रोक्सीमेटली, जस्ट बिकॉज ईपीएस अर्निंग्स कंपनी के बढ़ेंगे तो आपका पी कम हो जाएगा. सो ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया
का रेवेन्यू कंपनीज का इंक्रीज होगा तो यू सो टुडेज पी इज नॉट एज कॉस्टली if you see the forward P calculations. Okay, and why this has happened? Because we have a cost cut, we have a tax cut, we have interest rate reductions happening, debt reduction, and tighter working capital things happening in across. I will skip this thing now. Now we talk about global economy, we talk about Indian economy, we talk about Indian equity market, and we I will summarize at the end क्या करना चाहिए इन चीजों में, पर आपको मैंने डेटा पॉइंट बताते और भी. Now let's talk about couple of alternate data points. Should we invest in gold right now? अगर मैं गोल्ड के बारे में बात करूं, गोल्ड शुड ऑलवेज बी अ स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट. अगर आपके पास 100 रुपए का टोटल एसेट है, अगर आपका घर में टोटल एसेट का मतलब होता है नॉट ओनली इक्विटी एंड एफडीज, इट इंक्लूड्स योर रियल एस्टेट ऑल्सो. अगर आपके पास 100 रुपए का टोटल एसेट है तो 10 से 15 रुपए आपके पास गोल्ड में हमेशा होना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ गोल्ड का वैल्यू कम या ज्यादा है. सो आई ऑलवेज बिलीव इन थॉट प्रोसेस. सो whether you have a physical gold or whether you can buy a gold bond itself. So you can buy gold bond also. It is security नहीं होता, exactly price आपको मिल जाता है market से and easily redeemable and आप इनकैश कर सकते हो. So fund manager already predicted that gold price will increase from here, but gold should always be a strategic investment. If you are not invested in gold, whether in physical form or in cash form, you should park gold 10 to 15% of total asset that you have. And data also says that gold ETF, exchange traded fund, it has fallen 16 years low, lowest price in 16 years to Standard & Poor 500. So it is a very good time to buy gold if you have 5 to 7 year duration point of time. But अगर आपके पास ऐसे ही ने बताया 100 रुपए है तो 100 रुपए नहीं गोल्ड में डालना है, 10 से 15 रुपए ऊपर नहीं डालना है गोल्ड में. Okay, so that's one. Should you invest in Bitcoin? Like, that's a very interesting topic right now. A couple of people have invested in Bitcoin. Bitcoin के बारे में, cryptocurrencies के बारे में, I am having a sessions coming up next week. Saturday को you will get those who are interested to join me for cryptocurrency sessions. You can click on the chat link in the chat box. So can you just share the link in the chat box so that those who are interested can click on the link and register for the program there. Cryptocurrency Bitcoin में आपको पहले पता होना चाहिए है क्या ये चीज. Obviously अगर आप आज के टाइम में 1 लाख रुपए डालोगे and next 15 to 20 years it will go multifold, but there are a lot of risk involved to it. There are a lot of regulations, legality involved to it. You should know what is the underlying asset, blockchain mean, कैसे ऑपरेट करता है, क्या क्या रिस्क उसके अंदर है. पूरी इन्फॉर्म डिसीजन होने के बाद ही इन्वेस्ट करना, बिकॉज अनलाइक अदर इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड बोलो आप, shares बोलो, stocks बोलो, mutual fund, insurance बोलो, this is a completely decentralized way of investment. When I talk about decentralized way of investment, means you only will invest and the entire thing will stay with you. There is no third party who are going to manage this thing. Shilaito, can you just share the link in the chat box? Those who are interested can click on the link in the chat box and do register for the program. It is coming up next Saturday at 7 p.m. We are going to have a 2 hours long session out there. We are going to discuss very basic about cryptocurrency and blockchain technology. Okay, very interesting session. I love those fintech and blockchain technology and all. So I will not go much details about it, but speculations and all those things. But this is an important data point. वर्ल्ड का जो 95% बिटकॉइन है, इट्स बीन कंट्रोल्ड बाय ओनली 2.5% ऑफ द अकाउंट. सो हाईली स्पेकुलेटिव, हाईली मैनिपुलेटिव है, एंड no one knows who these 2.4% people are. Okay, and so you should know what exactly the underlying asset, another technology between of the cryptos. So moving ahead, I'm not going to spend much time here. Debt market, well, I will quickly move on because debt market something is very very technical. So I'm not going to discuss more technicals out here. Just ये चीज बताऊंगा, इंडिया में बैंक के पास आज के टाइम में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी. ये माइनस फिगर का मतलब ये सरप्लस है, ये सरप्लस है, बैंक के पास सरप्लस पैसा है इस टाइम में. अगर आप देखोगे 2016 में, अगस्त 2016 में ये 500 के प्लस था. आज के टाइम में भी आप -9,001, -9,000 के बाद इतना करोड़, लाख करोड़ रुपीस इंडिया के पास सरप्लस है बैंकिंग सिस्टम्स में. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इंडिया का पैसा कहाँ गया एंड व्हाट ऑल दोस थिंग्स. Like, well, onion and potato prices decide the bond yields. I will not get more details about it. Again, this is about inflation. I am intentionally not getting inside
bond and debt, because that's a long chapter, which probably I have a debt sessions coming up in next 1 or 2 months, so you can attend that thing and able to understand how government bond yields work. Okay, so that's what is about. ओनली आई विल से दैट इंडिया का जो इन्फ्लेशन आज के टाइम पे है वो 5.5 है. आरबीआई का जो कंफर्ट जोन है 2% to 6% रेंज में है. इंडिया का इन्फ्लेशन आज के टाइम में 5.5% रेंज पे है, स्लाइटली ऑन द हायर साइड. बट अगेन, अनलाइक यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि सप्लाई साइड इंडिया में नॉर्मलाइज होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएंगे. बट इंडिया का इन्फ्लेशन रेट डिपेंड करता है, सॉरी, इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है यूएस का फेड क्या डिसीजन लेगा. So don't give much importance here, because US Fed is only factor है कि जहां से आपको दिखेगा कि इंटरेस्ट रेट कहाँ मूवमेंट होगा इंडिया में भी. Okay, so I'm not going to discuss much deeper here. We will take a longer time to discuss. FIs इंडिया का डेट मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है. डेटा says that from the equity market. If you see, I have shown you the equity market data also. Last 2-3 months, FI have not moved money into the stock market of Indian, whether they're coming up into the debt market in India. I will skip from here. Debt market outlook, I'm not. Okay, so that's the global index return. अगर मैं एक साल का ग्लोबल मार्केट इंडेक्स देखूं, इंडिया का इंडेक्स ने सबसे ज्यादा दिया है 45%, फॉलोड बाय मेक्सिको. अगर आप यूके का देखोगे 18% है, यूएस का देखोगे 25%. दैट्स अ रिटर्न विच इज गिवन इन द लास्ट 1 year, एंड 2021 में ये रिटर्न है आपका. ओके, even if the companies like France, Canada and Germany and all, that GDP ratio is negligible, they have also performed exceptionally well. Okay, so we're moving on. Sensex का रिकॉर्ड अगर आप 10 साल का रिकॉर्ड देखोगे, 1980 to 1990 annualized return 21% था. Across the time they have given like a decent return which is way ahead than what normally Indian debt markets give, not fixed deposits give. So इसका मतलब ये है कि 2020 से 2030 तक का जो मार्केट है, अगर आप ये 10 साल इन्वेस्टेड रहते हो इंडिया का स्टॉक मार्केट में, यू आर गोइंग टू हैव मल्टीफोल्ड रिटर्न देन व्हाट द फिक्स्ड डिपॉजिट रिटर्न इज कमिंग, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपन. हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स की जापान में till 1980s we have seen a huge phenomenal growth in Japan, and China, followed by China from 1990 to 2010. We have a phenomenal growth in China. Now, whatever happened in India in the last couple of 8-9 years by way of demonetization, GST, and digitalization, things are happening, and with COVID and China and all those factors coming in, 2020 से 2030 ये इंडिया का साल है. अगर इस 10 years में अगर आप इंडिया में इन्वेस्टेड नहीं हो, so you are not going to make a lot of money. So this is the time where you should invest in India. I have shown you a number of data point earlier also. Every month, every subsequent month, I came up with a fresh data, and all data suggests me that 2020 to 2030 is the year where you can make an abundant amount of wealth in India. I have already told you, Sensex by 2030 is going to reach 150,000. That is 3 times what we are here today, just because of market capitalization and the GDP growth that we have. I was going through a data point earlier. आपको पता है इंडिया का जीडीपी इस टाइम में $2.9 ट्रिलियन है, अप्रोक्सीमेटली $3 ट्रिलियन. बाय 2040 it is going to reach $45 trillion. Can you even imagine the kind of growth is going to have in next 20-25 years? That's a long tenure. I'm not going to that much of long tenure, but अगर आप 5-7 से 10 साल का tenure देखोगे, this is the fantastic time you should be parked here. Short range में क्या होगा? I will give my ending comments there. What you want to do, and obviously one important thing, एक मल्टी बैगर स्टॉक्स आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किए थे कि आज के सेशंस में आई विल गिव यू वन सजेशंस, ऑल्दो आई वाज बेयर टू स्पीक in terms of any stocks or fund name because of very strict SEBI regulations. You can't recommend. I will recommend one stock for you, but please do your own due diligence before investing. Don't just invest just because I have said that investment. This is one of the regulation which we have. We can't speak in front of open market about the stock. So this is the debt market. I'm not going to discuss more about inflation, rupee, credit growth and all those stuff. And economy, I most of this thing has already said that corporate earnings, we are increasing. We have already increased. FII flow, DII flow, and supply paper and policy reforms. I've already mentioned a couple of points here.
Now, this is the IMF projection. This is not a projection on my side. You can see that emerging market and developing economies, 2021 and 2022 projections out here. And Indian export growth, I've already mentioned earlier. Again, I'm mentioning out here. This is the interest rate in US and all other countries. If you see, the Fed interest rate is 0.25%, and all other countries across the globe, you can see the interest rate out here. And this is the data point I showed initially also. This is the only data point which is worrying right now. Sensex 58,000 level is not worrying, because fundamentally I have already showed you we are a fantastic. If you see the Indian PE ratio, if you see the Indian earning per share of Nifty companies, it looks very attractive. If you see the forward PE, PE is reasonably priced right now. Indian stock market at 2020 March, January, when we are at 42,000 level, and today when we are 58,000 level, if you see the PE and EPS segment calculations, we are not that costly. Even India was costly in 2020 January level at 42,000 level. At 58,000 level, if you just see at the EPS, we are not costly. We are near about hardly at near about the same level that we are. But the only concern factor right now as an investor you should have is this data point. Okay, US inflation has gone high, but the Fed rate has increased, remain at stagnant level. So I already mentioned earlier, this, if this do not comes down in next 4 to 5 months, presumably you're going to see this rate is going to increase, just to ensure that this comes down at the bottom level. And if this is going to increase, it is going to have an impact across the globe. You can easily see a 15-20% correction from that level here. Although the market cap to GDP is already indicating another point that we are at 111 to 115% range, which is at 15% higher also. That point is also saying. Third important parameters, we have already told you that FI is a stock putting out aggressive investment in Indian stock market. They are rather investing in Indian debt market. So that's what exactly happened. And moving ahead, FOMC July 28 statement. I'm mentioning that this is the important committee. They normally sit every 2 months. So if you only hear this committee statement, half an hour or 1 hour every 2 months, you're going to know where the stock market will go in a short time. Okay. Government finances increase. I already told you. I already told you about the national monetization policy, inflation management, budgetary support, so selling PSU, what the government is doing at their level. And Indian GDP growth rate, it has bounced back. It will also going to bounce back in days to come. This is an IMF report. Okay, understand, this is an IMF report. In 2021, we are having, I already mentioned you, see, this is the GDP number we are having. 195 means $2.87 trillion right now. $2.87 trillion right now. They are expecting it to reach $6 trillion, 5.5 trillion dollar from here in 2026. So Sensex is at 58,000. I already told you 55, a little bit earlier, 1 month before data, 58,000 level. And if this goes up, if this double, 195 to 389, sorry, if this double, this is also going to double. So I have been constantly telling you about that horse and that car story all the time. So you follow that for 5 to 6 years, you are a fantastically placed right now, park in money in India. But for shorter time, yes, we are 10 to 15% correction can happen at any point of time in next 6 to 8 months point of time. Moving ahead, household saving, I already mentioned. So this is a kind of dependency ratio. Like we have a life expectancy at birth is, we have increased, fertility rate has reduced, dependency ratio has increased. So has reduced obviously. And China factor I've already mentioned earlier. And valuations, we are like 27, I already mentioned, but the forward P looks attractive. In a subsequent slide, you'll see the EPS, Sensex EPS. That's very interesting data point. Although the P looks higher, but you see the EPS today is higher than 2019 also, and it is going to increase from here. Earnings per share is going to increase from here. This is an IMF data point and is a future projection report that I'm going to share with you. If the EPS increases, the PE increase, the PE valuation right now doesn't holds the exact picture. It will actually comes down in days to come.
Okay, now this is another point. Market valuation appears elevated compared to longer term historical data, perhaps driven by ultra low yield and segment, Fed increase interest tolerance when compared relative attractiveness across asset class. A substantial part of investment flow continued to coming to the equity. Very high expectation of rising corporate profit versus GDP ratio. If you see the India versus, if you in Jan 2020, the India का bond yields जो था, गवर्नमेंट बॉन्ड का yield था 6.5%, US वन 1.9 एंड SBI फिक्स्ड डिपॉजिट was 6.25. अगस्त में देखो ये मोर और लेस सेम है, एफडी रेट इंक्रीज हुआ है. नाउ आई हैव मेंशन अर्लियर कि एफडी इस टाइम में क्यों कॉस्टली है और इक्विटी क्यों सस्ता है. नेक्स्ट स्लाइड विल टेल यू अबाउट दिस थिंग. अ लिटिल बिट ऑफ टेक्निकल है. जिसने मेरा सेशंस पहले अटेंड किया है पी और पीबी और ईपीएस के ऊपर, उनको ज्यादा क्लैरिटी आएंगे. जिसने मेरा सेशन अटेंड नहीं किया है, probably you will not be able to get that, but if you still know it, you can able to understand this thing. So let's take for an example. I have done this thing. FD rate, SBI का मैंने FD रेट लिया है. जैन 2020 में 6.25 था और अगस्त में ये 5% है. सो -20% एवरी रेट रिड्यूस हुआ है. निफ्टी का प्राइस आपका जैन में था 22,200, आज अगस्त में है 16,500, राइट. सो ये इंक्रीज हुआ है आपका 34%. आई हैव प्रोरेटेड द नंबर आउट है. 34% इंक्रीज हुआ है. अर्निंग पर शेयर निफ्टी का 20 जैन में था 434, आज के टाइम में वो 624 है, तो ये इंक्रीज हुआ है. सिमिलरली एफडी, एसबीआई एफडी का भी मैं अगर ईपीएस निकालूं वो 768 है और 794 है. पी वैल्यूएशंस जैन में था 28, आज अगस्त 4 अगस्त में 26 था, आज वो थोड़ा सा बड़ा है, 27 के आसपास है. अगर आप पी वैल्यूएशंस देखोगे ये रिड्यूस हुआ है, निफ्टी का रिड्यूस हुआ है. बट अगर आप एफडी का देखोगे, एफडी का पी वैल्यूएशन देखोगे, जस्ट बिकॉज द प्राइस हैज रिड्यूस्ड, द पी वैल्यूएशन एक्चुअली हैज इंक्रीज्ड. ओके, सो अगर आप आज के टाइम, इसका कहने का मतलब ये होता है आज के टाइम में अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करोगे, आप वो महंगा ले रहे हो, वो कॉस्टली ले रहे हो. इस डेटा को और क्लैरिटी से समझाने के लिए आपको ये ईपीएस, प्राइस अर्निंग, ये थोड़ा सा और डिटेल्स में आपको जानना जरूरी है. टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इस डेटा को क्लैरिटी बताने के लिए, बट मैं जस्ट ये डेटा पॉइंट आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफडी इस टाइम में आपका कॉस्टली ज्यादा है और निफ्टी का पी देखो, एफडी का है +25% कॉस्टली है एंड निफ्टी आपको सस्ता दिख रहा है इस टाइम पे. ओके, सो दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप aggressively इस टाइम निफ्टी में इन्वेस्ट करो, बिकॉज फंडामेंटली ऑल्दो वी आर वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड, बट one point is worrying, that is inflation number in US, which is a worrying factor right now, which can in a shorter time can correct the market 10 to 15% from here. अगर आप निफ्टी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, फाइनली बैक ऑन ट्रैक. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी अगर आप देखोगे, -13 पे था, ये 2020 और 2023 में ये 47 पे. अक्रॉस ऑल निफ्टी कंपनी का देखोगे, हेल्थ केयर में -2 पे था, 26% है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देखो, अक्रॉस ऑल सेगमेंट में, एनर्जी में, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मटेरियल, रिटेल बैंक, retail bank we have seen a little bit of stress, but it is going to turn around from here as things more normalize. Telecommunication, tobacco and utilities, we are going to see many segment जहां पे आपका टर्न अराउंड हुआ है इन लास्ट 6 years टू लेके आज के टाइम में 2020 to 2023 में. The reason because lower interest rate, recovery in demand and cost control post COVID first wave. Okay, so that's the couple of data point which I have showed to you. And now what is going to do for you, last my ending comment for you, all of you. मैंने आपको बताया कि to summarize today's presentation, I'm going to say that we talk about global economy, what is happening. We talk about Indian economy, Indian market and Indian equity market, and we talk about market cap to GDP. So negatives क्या है? Market cap to GDP जो 100% रेशियो में होना चाहिए, वो आज 115% पे है. That's negative. एफआईआई फ्लो जो है इक्विटी में पिछले 2-3 महीने में कम हुआ है. रिटेल इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है. जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने लगते हैं, नीचे नहीं करते लोग. सो दैट्स नेगेटिव. एंड थर्ड नेगेटिव पॉइंट आपको मैं कहूंगा कि यूएस का जो फेड इंटरेस्ट रेट है विच हैज गॉन शार्प, सॉरी, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है, बट यूएस ने फेड का इंटरेस्ट रेट सेम रखा हुआ है. अगर ये 3 से 4 महीने में
वो जो इन्फ्लेशन है वो नीचे की तरफ नहीं आता है, तो यूएस ने ऑब्वियस है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करेगा एनी टाइम इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। तो जो ये तीन नेगेटिव फैक्टर है, एंड फोर्थ आई विल से द कोविड फैक्टर, थर्ड वेव, बट कोविड फैक्टर उतना हैवॉक नहीं दिख रहा है यहाँ से। सो दीज आर नेगेटिव फैक्टर्स। अगर मैं पॉजिटिव फैक्टर्स को लूँ, इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, यहाँ से आईएमएफ बोलो, डेटा पॉइंट बताओ, एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से लगता है कि यहाँ से वी विल गोइंग टू ग्रो फ्रॉम हियर। इंडिया का जो निफ्टी का जो पहला 500 कंपनीज है, उनका सबका ईपीएस यहाँ से ग्रो करेगा, राइट? दैट विल गोइंग टू हैपन फ्रॉम हियर। सो फंडामेंटली अगर मैं इंडिया का कंपनी लूँ, प्रॉफिटेबिलिटी अगर मैं इंडिया कंपनी के देखूं, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट टुडे, आपको सारे पॉजिटिव दिखेंगे यहाँ से। एंड कई लोग मुझे ये कहते हैं कि इकोनॉमी जो हो रहा है, मतलब वी लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग, वो मार्केट में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट करता है? मतलब लॉट ऑफ पीपल माइट बी हैविंग दिस क्वेश्चंस, तो मैं इसका एक ही जवाब दूंगा, इंडिया का जो मार्केट है या इकोनॉमी है फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी, इमेजिन करो, इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी अभी भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं है। यू नो व्हाट इज द लार्जेस्ट कंपनी? दैट इज कॉल्ड LIC। सो देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज व्हिच आर नॉट लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट, तो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा नहीं। बट वन गुड पॉइंट इज दैट इस टाइम जब हम बैठे हुए हैं, लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग अप विद एन IPOs। आपको एवरी डे, एवरी ऑल्टरनेट डे में आप IPOs आना दिख जाएंगे, एंड इन नेक्स्ट 2 to 3 years यू विल सी अ लॉट ऑफ कंपनीज गेटिंग लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट, which is good because valuations बढ़ेंगे, कंपनी को easy होगा फाइनेंस रेज करने के लिए। आई एम गोइंग टू हैव अ सेशंस ऑफ हाउ अ स्मॉल कंपनी who may be a profit of 5 lakh also they can launch an IPO in the market via SME IPO. Okay, so that's a separate chapter altogether. So ये कुछ नेगेटिव मैंने बताया, कुछ पॉजिटिव मैंने बताया। So इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि कमिंग 6 to 8 months में we can see a market correction of 10 to 15% from here। 58,000 पे है, हो सकता है यहाँ से 60 क्रॉस कर जाए अगले 2-3 महीने के अंदर, sorry, but it is bound to come back to 52 or 50,000 level when the Fed will increase high। अब वो कब इंक्रीज करेगा, हाइक करेगा, अभी 2 महीने में कर सकता है या 6 महीने में करेगा, दैट एग्जैक्टली आई कैन नॉट प्रेडिक्ट। आई ऑलवेज से दैट वी कैन ओनली एस्टिमेट दिस थिंग। सो मुझे 10 से 15% यहाँ से नीचे करेक्शन दिखता है। सो अगर आपने इन्वेस्ट किया है और आप वेरी गुड प्रॉफिट सिचुएशंस में इस टाइम बैठे हुए हो, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड आप प्रॉफिट पोर्शन को बुक करो इस टाइम पे। वेट फॉर 6-8 मंथ्स। 58,000 से ज्यादा 62-65,000 जाएगा, बट इट विल कम डाउन शार्पली टू 52,000 लेवल, अगेन इन्वेस्ट। सो प्रॉफिट बुक करके आप थोड़ा सा पार्क कर सकते हो आर्बिट्राज और कुछ कैश सेगमेंट में, एंड देन प्रोबब्ली 6-7 मंथ्स डाउन द लाइन यू कैन री इन्वेस्ट। एक ये ऑप्शंस आपके सामने है। और अगर आपके पास लॉन्गर ड्यूरेशन है, बहुत ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन है, 7 to 10 years काइंड ऑफ थिंग, आई ऑलरेडी टोल्ड यू जीडीपी ग्रोथ डबल हो जाएगा, सेंसेक्स यहाँ से आपको 1.5 लाख दिख जाएंगे अगले 8-9 साल के अंदर। अगर आपके टाइम इस टाइम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, सो आप वैल्यूएशन मेट्रिक्स फॉलो कर सकते हो। देयर आर कपल ऑफ सेगमेंट, कपल ऑफ सेक्टर है जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी चीप है, अभी भी वैल्यूएशन चीप है, वहां पे आप डाल सकते हो पैसा। अदरवाइज एग्रेसिवली इस टाइम इक्विटी में इन्वेस्ट मत करना, थोड़ा सा होल्ड करना कमिंग 6 to 8 months, बिकॉज मुझे लगता है यहाँ से हल्का सा करेक्शन आ सकता है कमिंग 6 to 8 months में। थोड़ा सा स्ट्रेच्ड आउट हो गया है मार्केट, बट हैविंग सेड दिस थिंग, 6-8 महीने इज अ वेरी शॉर्ट टाइम। अगर आप लॉन्गर टाइम देखोगे, फैंटास्टिक, यू शुड नॉट, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एफडी बहुत कॉस्टली है इस टाइम इन्वेस्ट करना। आपको एफडी 5% रुपीज दे रहा है, 1 लाख में आपको 5,000 रुपये साल में मिल रहा है, और इक्विटी मार्केट एक ही दिन में 2 से 3% ऊपर नीचे जाता है। सो प्रोबेबली 5-10% करेक्शन होगा, कब होगा ये हमें नहीं पता, बट गोइंग अहेड इन नेक्स्ट 7-8 years आपको बहुत अच्छा यहाँ से रिटर्न दिख जाएंगे। सो आई ऑलरेडी सेड दिस थिंग, एडजस्टेड टैक्टिकल एसेट एलोकेशन, रिडीम अमाउंट। अगर आपको लगता है कि कमिंग 6 to 1 साल के अंदर अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, आपको पैसा चाहिए वट एवर फैमिली एक्सीजेंसी और किसी चीज के लिए, दिस इज अ गुड टाइम, यू सेट असाइड प्रॉफिट फ्रॉम योर ऑलरेडी इन्वेस्टेड अमाउंट एंड पार्क इट इन अ कैश। एंड अगर आपको लगता है कि 6-8 महीने में आपको पैसा नहीं चाहिए, आई विल रिकमेंड यू टू बुक प्रॉफिट एंड सिट ओवर आर्बिट्राज काइंड ऑफ एसेट क्लास, और वहां से फिर आप री एंट्री लेना। अगर कोई यहाँ से फ्रेश इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, कोई करना चाहता है, आई विल रिकमेंड यू टू यूज वैल्यूएशन मैट्रिक्स टू इन्वेस्ट। अगर आप वैल्यूएशन मैट्रिक्स कैसे यूज करोगे, ऑल ऑफ यू माइट बी हैविंग माय व्हाट्सएप नंबर, यू ड्रॉप मी
message, I will personally connect with you and tell you how you can invest right now at this point of time. जिसने भी इंश्योरेंस में यूलिप प्रोडक्ट लिया हुआ है, आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यूलिप में एक एडवांटेज होता है कि वहां पे आपको स्विच में कोई टैक्सेशन नहीं देना पड़ता है. इक्विटी से मूव करके आप डेट में स्विच कर जाओ. डेट में भी लो ड्यूरेशन फंड में. ओके, सो अगर याद रखना, अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो एग्जिस्टिंग जो डेट का यील्ड है वो नीचे आता है, वो रिवर्स चलता है. सो अगर आप इतना टेक्निकल्स आपको पता नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी. You have my number, you have my WhatsApp number. तो can you just drop a message in the chat box? अगर किसी को कोई query है तो drop in the link and I will get back to them. Already is 1 hour plus in my sessions. I have nothing more to say right now. And if you have any questions, you can drop by. I can take 1 or 2 questions at the max. And or else you can drop in my personal WhatsApp number. I see most of the people here, they know me personally, so it doesn't so you can personally WhatsApp me in my number. And don't forget to register for my next Saturday's cryptocurrency sessions. It's going to be fun. It's a new technology. You should be aware of the technology. Cryptocurrency, Bitcoin, कहाँ से कहाँ जाएगा ये जरूरी नहीं है. इंपॉर्टेंट जरूरी ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि अंडरलाइंग एसेट का क्या है, व्हाट एग्जैक्टली, क्यों वो उतना राइज करता है, क्यों वो राइज करेगा. ये है. जाते जाते एक मैंने आपको प्रॉमिस किए थे कि आई विल टेल यू मल्टी बैगर स्टॉक राइट नाउ. अगर इस टाइम में आपको मल्टी बैगर कौन होगा जिसका डिमांड आगे चल के होगा, राइट. सो आई एम गोइंग टू से दैट देयर इज वन स्टॉक व्हिच कुड बी अ मल्टी बैगर राइट नाउ. वी डू अ लॉट ऑफ रिसर्च बट properly do your due diligence investing. There is one company which is called Zen Technologies, which is currently monopoly in their market. They actually design drones. आपका ड्रोन इंडस्ट्री आगे चल के काफी ऊपर जाएगा, आप देखना. सो they actually prepare government drones, you know. So Zen Technologies, I am going to see going to be a multi-bagger, could be a multi-bagger kind of thing. But please do your due diligence before investing in Zen Technologies. If you want details specific about any particular stock investment, use future prosperity, everything, please get back to me personally. I will let you know about that. Thank you all for attending today's sessions. I'm thankful for all of you for taking out your time today. Every month at 2nd or 3rd September, we normally take a market updates. I will recommend all of you to spare 1 hour of sessions every month to be completely aware of what's happening in the market, so that you can take an informed decision and grow your wealth from here on. Okay, so I am not going to take much time out here. Okay, I'm going to stop right here.